Till now, we have studied how a contract of sale is formed, which are the terminologies required to be known. What is sale? What is agreement to sale? How it differs with several different kinds of arrangements. What are the implied conditions and warranties that are presumed by law to be incorporated in the contract of sale? Okay. Now, the next topic that we are going to learn is transfer of ownership and delivery of goods. इस चैप्टर में हम लोग प्रॉपर्टी, possession and delivery. In this topic, we are going to discuss about three things: property, possession and delivery. Property means ownership over here. तो कब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है? आई एम सेइंग कब, माने टाइम ऑफ पासिंग. ओके, which is the particular moment on which the property passes on from seller to buyer. Is that clear? ये क्यों जानना जरूरी है? Why this is necessary is once the property in the goods passes from seller to buyer, अगर प्रॉपर्टी माने ओनरशिप पास ऑन हो गया तो ओनरशिप के साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू ओनरशिप ये भी ट्रांसफर हो जाएंगे. मतलब इसके बाद होने वाला नुकसान भी बायर का है और फायदा भी बायर का है. So what we are going to learn in this chapter, which is the precise time of passing of ownership. ऐसा हम क्या करेंगे जिसकी वजह से ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर ट्रांसफर होता है. ओके, what is the meaning of possession of goods and in which mode delivery can be given. हमने पढ़ा था ना, symbolic delivery, constructive delivery. कार नहीं दी पर कार का कीज दे दिया, है ना. गुड्स नहीं दिया पर गुड्स जिस गोडाउन में पड़ा हुआ है उसका कीज दे दिया. द गोडाउन वॉचमैन इज नाउ securing goods on behalf of buyer rather than seller. तो हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं: प्रॉपर्टी, पोजेशन एंड डिलीवरी. ज्यादा डिस्कशन, much of the discussion of the chapter will reveal around this thing: time of passing of ownership, at which time the ownership passes on from seller to buyer. Okay, so a contract of sale of goods involves transfer of ownership, passing of property, delivery of goods, passing of risk. Normally ये जो रिस्क वाला पार्ट है ना वो प्रॉपर्टी के साथ ही जाता है. मतलब जब मैंने ओनरशिप ट्रांसफर किया तभी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर कर दिए. बट बाय मेकिंग एक्सप्रेस एग्रीमेंट आप ऐसा शो कर सकते हो कि ओनरशिप एक टाइम पे ट्रांसफर होगा और रिस्क दूसरे टाइम पे ट्रांसफर होगा. नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. प्लीज बी क्लियर विद दैट. प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ माने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा, या ये इम्प्लाइड है. बट अगर मुझे सेपरेट करना है कि ओनरशिप एक टाइम पे ट्रांसफर होगा, रिस्क दूसरे टाइम पे ट्रांसफर होगा, तो आई कैन डू दैट बाय वे ऑफ एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. Property, possession and delivery of goods. That is what we are going to learn in this chapter. Okay. और इसका इम्पोर्टेंस इस चीज की वजह से है कि कौन से टाइम पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है. बस पूरे चैप्टर में ज्यादातर इसी पे फोकस होता है.
So sale of goods involves transfer of ownership from seller to buyer. It is essential to determine the time at which the ownership passes from seller to buyer. Importance of the time of transfer. इसका importance क्यों है? The general rule is that risk prima facie passes with the property. देखो, that is what I already said. जब भी ownership transfer होगा तो उसके साथ साथ risk भी जाएगा. So in case where goods are lost or damaged, the burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time when goods are lost or damaged. जब ये goods खराब हो गए, बिगड़ गए, चोरी हो गए, उस टाइम पे जो उसका ओनर है, पोजेशन किसके पास था वो बात अलग है, ओनर कौन था वो मैटर करता है. What does not matter is possession. What matters is ownership. है ना? तो अगर लॉस उसका होगा, माने समझो कि गुड्स का प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर पास ऑन हो गया और ये गुड्स जा रहा था ट्रांसपोर्ट में, इन बिटवीन कहीं वो चोरी हो गया, पूरी ट्रक चोरी हो गई, थेफ्ट. ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था कि नहीं हुआ था? मैंने क्या बताया? हो गया था. हो गया था. तो रिस्क किसका था, सेलर का या बायर का? बायर का. The risk is of buyer. And if the goods were insured, तो क्लेम कौन करेगा? बायर. बी. ओके, दैट इज बायर क्लेम करेगा और इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा भी उसको. समझ में आ रहा है? अगर नुकसान हुआ तो भी उसका, और अगर इंश्योरेंस क्लेम करना है तो भी उसका है. The risk prima facie passes with the ownership. Okay. Where the goods are damaged by the act of third party, it is the owner who can take action. Obvious है, सेलर ने बायर को गुड्स ट्रांसफर कर दिया, पोजेशन भी ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया, तो अभी तक बायर के पास पहुंचा नहीं है, सेलर के वहां से निकल चुका है, बायर के पास पहुंचा नहीं है. और किसी थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से अगर गुड्स डैमेज हो गया तो इस थर्ड पार्टी के सामने क्लेम भी कौन करेगा? buyer. It's not the seller who will make claim, it is the buyer, क्योंकि प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया था. Suit for price by the seller lies only when the property has passed to the buyer. इसके बाद का चैप्टर है अनपेड सेलर. क्या है अनपेड सेलर? माने सेलर ने बायर को गुड्स का पोजीशन और ओनरशिप दे दिया पर बायर ने उसको पेमेंट नहीं किया, तो सेलर क्या कर सकता है? व्हाट द सेलर कैन डू? गुड्स का पोजीशन भी दे दिया और ओनरशिप भी दे दिया, अभी बायर ने वो गुड्स आगे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर लिया, आगे बेच दिया या कुछ भी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो गुड्स तो वापस लाना पॉसिबल नहीं है. सेलर क्या करेगा? सूट फॉर प्राइस. बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास्ड, माने ओनरशिप चेंज होना चाहिए. अगर ओनरशिप चेंज ही नहीं हुआ है तो सपोज सेलर ने बायर को गुड्स बेचने का प्रॉमिस किया, बायर गुड्स लेने आ रहा था, वो सेलर के पास पहुंचे उससे पहले सेलर को इंफॉर्मेशन मिल गया कि बी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, बी का फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है, बी कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है, इट इज बेटर नॉट टू सेल द गुड्स टू बी. क्या सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर किया था? यस और नो? वो अभी तो लेने आ रहा था गुड्स, बायर. The goods were not transferred from seller to buyer. तो सेलर उसको
जिस वे में चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकता है, मतलब वो बी को मना बोल देगा, मुझे नहीं बेचना है तुमको, सिंपल। क्योंकि क्या पास ऑन नहीं हुआ था प्रॉपर्टी, माने प्रॉपर्टी दैट इज ओनरशिप अभी भी सेलर का था, तो सेलर जो चाहे वो कर सकता है। बट अगर एक बार प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर ट्रांसफर हो गया तो सेलर क्या करेगा, सूट फॉर प्राइस। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि सेलर क्या कर सकता है गुड्स के रिलेशन में। केस करेगा कि गुड्स को कहीं और डिस्पोज ऑफ कर देगा या कोई और ऑप्शन अवेलेबल है, क्या कर सकता है सेलर। बट सूट फॉर प्राइस वो तभी कर सकता है जब क्या ट्रांसफर हुआ हो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब इस चैप्टर में क्या है, ओनरशिप। ओके, तो उसके लिए टाइम फैक्टर जानना बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो डील किया हुआ है सेक्शन 18 टू सेक्शन 26। मतलब यहाँ पे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस देके आपको समझाया गया है कि कब कौन सी सिचुएशन में प्रॉपर्टी पास ऑन होता है। पढ़ते हैं। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी constitutes the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of seller and buyer। इसी चीज पे आपका नेक्स्ट चैप्टर बेस्ड है, that is rights of unpaid seller। Passing of property implies passing of ownership। if the property has passed, risk किसका हो गया, is that of the buyer and not of the seller, though the goods may still be in the seller's possession। ऐसे भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हम लोग देखने वाले हैं जहां पे गुड्स अभी भी सेलर के पास हैं और यहीं पे वो गुड्स डैमेज हो गए। और अगर इस गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका था तो ये नुकसान सेलर का नहीं है, किसका है, बायर का, बिकॉज द ओनरशिप वॉज ट्रांसफर्ड। समझ में आ रहा है किसी को कुछ डिफिकल्टी? नेक्स्ट, passing of property in case of specific goods or ascertain goods। passing of unascertain ये पॉसिबल नहीं है, हम आगे जाके देखेंगे। अनअसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी पास ऑन पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल दैट इज ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये हमने अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस में, यहाँ पे हमने कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, उसमें लास्ट चैप्टर ये भी था, सेल और रिटर्न बेसिस, और वहां पे हमने कंडीशंस पढ़ी थी, उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे। और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। योर मैक्सिमम अटेंशन शुड बी एट दिस टॉपिक। सबसे ज्यादा अटेंशन इस टॉपिक के वक्त होना चाहिए। ओके, सो 4 situations are given: passing of specific goods, passing of unascertain goods, passing of goods sent on approval basis, and last is transfer of property in a case where the right of disposal is reserved। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और ascertained गुड्स पढ़ा हुआ है हमने फर्स्ट चैप्टर में। यस सर। देयर इज नो डिफरेंस, है ना, ये भी पढ़ा था कि स्पेसिफिक और ascertained गुड्स में ज्यादातर कोई डिफरेंस होता नहीं है। स्पेसिफिक मींस विच आर स्पेसिफाइड, ascertained माने केप्ट असाइड, है ना। 50 कार पड़ी हुई है,
उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर कार को साइड पे रखने के लिए बोला, तो वो कैसा गुड्स हो जाएगा? A certain, Asset. okay. So when there is a contract for the sale of specific or a certain goods, the property in them is transferred at such time as the parties to the contract intend to. क्या लिखा है? एक पूरे सेंटेंस का सिंपल मीनिंग क्या है? गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया, केप्ट असाइड है. नाउ इट इज अपॉन द पार्टीज, है ना, ये पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कब प्रॉपर्टी पास ऑन करना चाहते हैं. मींस हाउ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर मेड. कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? अब ये लिखेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, importance regard, that is importance shall be given to the terms of the contract, the conduct of the parties and the circumstances of the case. कौन सी चीजों को देखेंगे? terms of contract, conduct of parties and circumstances of the case. इसके बेसिस पे से जज करेंगे कि प्रॉपर्टी पास ऑन हुआ था या नहीं हुआ था. उससे आपका इंटेंशन पता चलता है. Unless a different intention appears, the rules contained in section 20 to 24 are rules for ascertaining the intention. माने हम क्या पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं? We can read section 20 to 24 and then decide at which time the property in the goods passed from seller to buyer. Okay, चलो सबसे पहला सेक्शन है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट. डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरेबल स्टेट? फॉर एग्जांपल, है ना, आप कोई भी व्हीकल खरीदते हो तो ऐसा नहीं कि आपको गोडाउन में व्हीकल दिखाया, आपने उसमें से एक व्हीकल सेलेक्ट किया, लेके चले आ गए. इट्स नॉट सो. उस व्हीकल में कुछ और एक्सेसरीज को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? Yes, sir. है ना. तो सिर्फ उसको गोडाउन से लेके मेन शोरूम तक लेके आना वो डिलीवरेबल स्टेट नहीं होता है. व्हीकल में एक्सेसरीज लगाना, इसका रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का काम, है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं. डज नॉट पास until the goods are put in a deliverable state. Now what is a deliverable state? कि उसको नॉर्मली हम जिस तरह से कस्टमर्स को बेचते हैं उस कंडीशन में लाना पड़ेगा. नॉर्मली कोई कस्टमर उसको कैसे एक्सेप्ट करता है ना. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टेलीविजन का. So X goes into a shop and buys a television and asks the shopkeeper for its home delivery. The shopkeeper agrees to do it. The television immediately becomes the property of X. इसमें कुछ करना पड़ता है टेलीविजन में. Yes or no? So the fittings and all. अगर आपने बोला होगा स्पेसिफिकली तो क्या बोला होगा? तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है ना. बट इफ यू बाय अ गीजर, इलेक्ट्रॉनिक गीजर फ्रॉम समवेयर, तो क्या वो शोरूम वाले आपको फिटिंग का देते हैं या आपको अपने आप अरेंज करना होता है? सोच के देखो. इट इज बोथ वेज. आप खुद भी अरेंज कर सकते हो या शोरूम ओनर को बोल सकते हो. बट अगर आपने शोरूम ओनर को या जहां से आप गीजर बाय कर रहे हो उसको स्पेसिफिकली नहीं बोला कि आपको मुझे फिटिंग का सर्विस भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा अलग कॉन्ट्रैक्ट है. सेलिंग ऑफ टेलीविजन इज अ डिफरेंट पार्ट एंड सेलिंग ऑफ टेलीविजन अलोंग विथ फिटिंग सर्विसेज इज अ डिफरेंट पार्ट, है ना. आप एसी बाय करते हो तो आपको बोलते हैं फ्री सर्विस, फ्री इंस्टॉलेशन, बट एक्चुअली वो फ्री नहीं होता है. इट इज नॉट एक्चुअली फ्री. आपकी एसी की कॉस्ट में वो इंक्लूड हो जाता है. और जो शोरूम वाले होते हैं ना,
उन्होंने स्पेसिफिक पर्सन को हायर किया हुआ होता है जो अलग अलग जगह पे जाके लोगों के घर पे फिटिंग करके आता है। अदरवाइज आप ऐसा बोलोगे कि मुझे फिटिंग नहीं करवाना है, मैं अपने आप करवा लूंगा, या मैं खुद मैकेनिक हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं कर दूंगा, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं? How are these two contracts? These are two separate things. But when you say that कि आपको टीवी डिलीवर करना पड़ेगा, सिर्फ इतना नहीं है, घर आके इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन है तो प्रॉपर्टी कब पास ऑन होगा? वंस इट इज इंस्टॉल्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बायर। ऐसा ये सेंटेंस नेसेसरी है। नॉर्मली कॉम्बिनेशन में ही सर्विसेज दी जाती है, पर ऐसा नेसेसरी नहीं है ना। आपने बोला एसी भेज दो मेरे घर पे, तो इंस्टॉलेशन के बारे में पूछा तो बोले हाँ कर देना, तो AC is bought along with installation service. Again, the property passes on only when the AC is installed to the satisfaction of buyer. बट अगर उसके बिना खरीदा है तो जैसे ही हाँ हो गया, चलो टीवी भेज दो या AC भेज दो, प्रॉपर्टी पासिस ऑन। पोजेशन अभी भी कहाँ है? सेलर के वहां है, फिर भी इसका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। दैट इज व्हाट द एक्ट सेज। ओके, अभी उसका थ्योरी पढ़ते हैं। वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कैसा है? मतलब सिर्फ टीवी बाय किया, टीवी के साथ इंस्टॉलेशन का कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द sale of specific goods in a deliverable state. The property in the goods passes when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of price or time of delivery or both is postponed. उससे कोई मतलब नहीं कि आपने इमीडिएटली पेमेंट किया, आप डिफर्ड पेमेंट करने वाले हो, आपने इमीडिएटली डिलीवरी ले लिया, आप डिलीवरी 10 दिन के बाद लेने वाले। ऐसा होता है ना, मुझे किसी को कोई गिफ्ट देना है, सपोज आई वांट टू गिफ्ट सम कार और बाइक और व्हीकल और बाइसिकल, कुछ भी, तो मैंने क्या किया, बुकिंग करवा दिया। डिलीवरी लेने के लिए क्या कहा? व्हाट डिड आई से? आई विल कम लेटर ऑन आफ्टर 10 days टू टेक डिलीवरी। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो आपको जैसा कंडीशन में व्हीकल चाहिए वैसा कंडीशन में हम रख के साइड पे रख देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो गया? पास ऑन। उस भले वो सेलर के पोजीशन में है तो भी इसका ओनरशिप किसका हो जाएगा? द ओनरशिप विल बी दैट ऑफ द बायर, क्योंकि गुड्स को स्पेसिफाई भी कर दिया गया है, असर्टेन्ड भी कर दिया गया है, और वो डिलीवरेबल स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? डिलीवरेबल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मंडी में गया, APMC में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वहां पे चावल राइस के काफी सारे लॉट पड़े हुए हैं, है ना। वहां पे पूरा वो एक हीप बना देते हैं, तो राइस के काफी सारे लॉट पड़े हुए हैं। अब मैंने इसमें से कोई एक पर्टिकुलर लॉट सिलेक्ट कर लिया कि चलो ये लॉट मेरा, मैं आपको प्राइस पे कर देता हूँ, कितना क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट। तो उन्होंने बोला कि ये 5 टन्स है, तो ठीक है। तो सेलर ऐसा बोलेगा चलो उठा के लेके जाओ, यस और नो? वो पूरा खुला पड़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन? इस राइस को प्रॉपर पैकेजिंग करना पड़ेगा कि नहीं? 35 kg का या 50 kg का बैग बनाना पड़ेगा। तो वो कौन से स्टेट में आता है? इट कम्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। ओके, तो आपको
क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पुट द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। नंबर 2, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट। टू बी पुट मतलब अभी तक हमने उसको डिलीवरेबल कंडीशन में रखा नहीं है, तो प्रॉपर्टी तब तक पास ऑन नहीं होगा जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आता है। माने सेम एग्जांपल राइस का, मैंने एक लॉट सिलेक्ट कर लिया कि ये लॉट, इधर जितने भी चावल बिखेरे हुए पड़े हैं वो सब मेरे, मैं इसके लिए प्राइस पे कर देता हूँ, और तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा जब तक इसका क्या नहीं होगा, प्रॉपर पैकेज। They are yet to be put in a deliverable state. Okay.